Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for Grade 3. We are going to start Unit 2. It's a beautiful lesson with title, I Love My Country. I'm going to tell you SLO-based lecture division for this unit and a brief introduction of the unit. So in lecture 1, under the title of formal and lexical skill, we learn about verb and we'll cover the SLO to recognize doing words as verbs and use verbs in speech and writing. Lecture 2, under the title of formal and lexical skill, we'll learn about pronouns, substitution words, and we'll cover the SLO to identify and recognize the function of pronouns, recognize substitution words as pronouns, and identify and use pronouns in sentences. Lecture 3, again under the title of formal and lexical skill, we'll learn about singular, plural, and we'll cover the SLO to recall changing the number of simple naming words by adding and removing s and es, identify and change the number of nouns by adding ies and es from the words ending in y or o. Use the alphabetical order first and second to arrange words. Lecture 4, under the title of reading and thinking skill, we learn about silent letters and we'll cover the SLO to pronounce and spell simple words with silent letters as W in right and K in no, and use the alphabetical order first and second to arrange words. Lecture 5, we'll start reading and understanding the text and we'll cover the SLO to use post-reading strategies to respond to the text by relating what is read to their own experiences. And in lecture 6, we'll continue reading and understanding the text and we'll cover the SLO to use post-reading strategies to respond to the text by relating what is read to their own experiences. Use summary skills to provide missing word in gapped summary. Write sentences of their own by using correct capitalization, punctuation, and spellings. Lecture 7, under the title of oral communication skill, we learn how to express regret and we'll cover the SLO to use appropriate expressions in conversation to articulate, recognize, and use formulaic expressions to express regret. Lecture 8, under the title of writing, we learn use of pronouns and we'll cover the SLO to fill in the missing information to complete a simple paragraph and identify and use pronouns in sentences. So, my dear students, this is the SLO-based lecture division of this unit. So, let's understand what this unit is all about. The title of the unit is I Love My Country. क्या मतलब है कि मुझे अपने वतन से मोहब्बत है, अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत है. So, the text is, इसमें क्या मेंशन है, पहले हम इसको थोड़ा सा देखते हैं. पाकिस्तान इज माई होमलैंड. बेटा पाकिस्तान जो है वो हमारा होमलैंड है. और होमलैंड कहते हैं कोई इंसान जिस मुल्क में पैदा होता है वो उसका होमलैंड होता है. ठीक है, तो हम शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह वी आर पाकिस्तानी. सो पाकिस्तान इज आवर homeland. It is the place where I live a happy life. ये जगह है, ये वो जगह है जहाँ मैं एक बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ. तो ये अल्लाह की एक नेमत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह. सो इस तरह की सिचुएशन पे हमें क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह. आई एंजॉय इट्स वेदर्स. अच्छा मुझे ये बताएं बेटा, पाकिस्तान में कितने मौसम हैं? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 4 वेदर्स. और ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है और इसी वजह से हमारे पास क्योंकि सारे मौसम हैं तो हमारे पास बहुत अच्छी हमारी ज़राअत है. हमारी जो फसलें हैं और हमारे जो फल और सब्जियां हैं वो बहुत ही उम्दा हैं. सो वेदर अल्लाह की एक नेमत है और इससे हमें मज़ीद नेमतें मिलती हैं. इट केम इनटू बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी दैट मुस्लिम्स शुड हैव देयर ओन कंट्री. अब ये नेमतें तो हमें मिलेंगी, लेकिन ये कैसे मिली? हमने पाकिस्तान इस तसव्वुर से लिया कि मुसलमान यहाँ अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारेंगे, क्योंकि
पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश ये सब इकट्ठे थे। और यहाँ पर जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी तो बहुत सी, आप इंशाल्लाह बड़े होंगे तो बहुत सी आप तारीख़ पढ़ेंगे, तो एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों के लिए मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ना भी पॉसिबल नहीं था। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए मुसलमानों ने क्या सोचा कि हम अपना एक अलग वतन बनाएंगे। इसलिए इसको कहते हैं आइडियोलॉजी। हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हमारा मुल्क जो है वो इस्लामी मुल्क होगा, और वो पाकिस्तान इज़ द हार्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। ये एक इस्लामिक मुल्क ही नहीं है बल्कि ये पूरी मिल्लत इस्लामी का दिल है। पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं उनका दिल है। वी अचीव्ड इन द नेम ऑफ इस्लाम, हमने ये इस्लाम के नाम पर हासिल किया। तो ये हमारी बेटा एक जिम्मेदारी भी है, जब हमने अपना वतन इस्लाम के नाम पर हासिल किया तो हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ना, क्योंकि इस्लाम ही हमारी पहचान है, हमारा मुल्क। देखिए, अगर आप कहीं मुल्क से बाहर ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आप क्या कहते हैं, अपने मुल्क का नाम पहले बताते हैं। आई एम अ पाकिस्तानी एंड दिस इज़ माई नेम, ओके। तो आप पाकिस्तानी हैं, एक इस्लामी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए ना। तो इंशाल्लाह हम इसकी कोशिश भी करते हैं। वी कैन परफॉर्म आवर रिलीजियस ड्यूटीज़ फ्रीली, इट इज़ अ स्टेट वेयर वी हैव फ्रीडम। यहाँ पर हम अपनी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिद में जाकर आराम से नमाज़ पढ़ते हैं, हर अपनी जो रोज़े रखते हैं, हर काम अपना आसानी से करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई पीपल who won fame throughout the world, and it is the land where heroes are leaders like Quaid-e-Azam and Allama Iqbal lived. तो हमारा जो मुल्क है उसके जो हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हमें उन पर फ़ख्र है। और बेटा फ़ख्र का एक तरीका ये है कि हमें भी अपने मुल्क के लिए मेहनत करनी है और हमें भी अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। My country is full of many beautiful natural scenes. It is the land of mighty mountains मीन्स बहुत बड़े बड़े हमारे मुल्क में, आपको पता है ना दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी भी हमारे मुल्क में है। तो हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और दरिया हैं और ख़ूबसूरत वादियाँ, खेत और दरख्त हैं। और इसकी जो खूबसूरत सीन्स हैं कहाँ के, सवात, कलाम, नारान, कागान और कश्मीर के, इनको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं और इसकी खूबसूरती की तारीफ़ किए बग़ैर नहीं रह सकते। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे सीन्स हमारे पाकिस्तान के हैं। आई विश टू सी माई होम मदरलैंड अ फ्री, fearless and more united country. I will devote all my time for its progress and welfare. This is the thing. अल्हम्दुलिल्लाह हम हर रोज़ अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और ज़्यादा मजबूत बनाए, और इसके साथ हम ये अहद भी करते हैं कि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और बेटा कोशिश ये होती है कि जो भी आपको फ़र्ज़, अब आप स्टूडेंट हैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, एक अच्छे स्टूडेंट बनकर दिल लगाकर पढ़ें, फिर आपका बहुत शानदार ब्रेन उसको अपने मुल्क के फ़लाह के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। आप हमारा कल हैं, ये मुल्क आपकी तरक्की के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा मुल्क के लिए हमने बहुत ढेर सारा काम करना है, और जो हमारे पास अच्छी अच्छी मिसालें हैं उनको हमने फॉलो करना है। और सबसे बेहतरीन मिसाल किसकी है? सबसे बेहतरीन मिसाल तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और ये देखें एक खूबसूरत हदीस जो कि सही बुखारी में है, और हज़रत अनस ने इसको नरेट किया है। वो कहते हैं कि मैं आपको इसका तर्जुमा डायरेक्टली बताती हूँ कि जब भी हम कभी मदीना से बाहर जाते थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की दीवार नज़र आती थी, तो वो अपनी जो चाल है ना, अपनी पेस उसको तेज़ कर देते थे। और अगर वो किसी एनिमल जैसे हॉर्स या कैमल पर हैं तो उसकी स्पीड तेज़ कर देते थे कि मैं जल्दी से मदीना में एंटर हो जाऊँ। ये क्या है? ये उनका अपने वतन के लिए मोहब्बत है। तो इसी तरह से इसका मतलब है कि अपने वतन से मोहब्बत एक सुन्नत, एक खूबसूरत सुन्नत भी है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमें अपने वतन से मोहब्बत भी करनी है और अपने वतन की तरक्की के लिए काम भी करना है। ये एक जज्बा भी है और एक ज़िम्मेदारी भी है, राइट। तो इंशाल्लाह कल हम इस यूनिट को लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे, ग्रामर के पोर्शन से। आज जो भी अच्छी बातें आपने सीखी हैं इनको दूसरों को बताइए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन पर हमने अमल करना है। That's it for today. Tomorrow I'll come again with a very interesting lesson. Till that time,
Keep learning, keep practicing, take very good care of yourself and the people around you. Thank you and Allah Hafiz.